Today, salutation to the God. Today means October 8th, Tuesday, 2024. Now, about the God, I explain. Explainer is Balram Ji, Advait Pardip, Saraswati titles, President of Akhand Sugar Kendra of Nepal country, from Bhairava city through radios, FM, Rupandei FM, Radio Parasi, Srinagar FM, Palpa Tansen, Mukti FM from Butol. About the God, for we very necessary to know about the nature of God, because our immortal nature is only God. Our means we all of the world, we all human beings, our real nature is according God. So about the God, we should know very clearly at this time. It will be very useful, the best useful, the most useful for we all. We can realize God according the experience of the Sandhya Kala in Hindi and language, Nepali language, Sandhi Kala. Sandhi Kala means that time, the gap time in between two. Like to know, for example, there is border in between two countries. There is a border in between two countries. Suppose in between China and Nepal. Suppose in between India and Nepal. There is border. Border means there is a gap. That place, the border place, neither that country nor this country, because that is on the middle. Neither that nor this. The border, for example, to know, like in the middle, in between two facts. I am trying to know about the Sandhi Kala in Hindi and Nepali. We say Sandhi Kala. To know what is the actual meaning of Sandhi Kala. For that, I am giving example of border of two countries and other also, from which we can know that is facts in between two facts. Neither that fact nor this fact. In the middle there is gap. In the respiration also, in the breathing also, there is a gap. Even 1 second, 2 seconds, very short time, maybe, but there is a gap. In the gap, neither that, neither this. These are the examples
to know about the Sandhikal, the meaning of Sandhi. About Sandhikal, from the border point of view, from the middle point of view, we can realize the experience of the God, which we realize in the gap period. That is the experience of the God, actually, which lives always, which is forever. The actual, the nature of the God, we can know from that. It is the version of Vedanta philosophy. It is the philosophy of Vedanta to know the experience of the God, to realize the experience of the God. This example very famous in the Vedanta philosophy, which is the supreme philosophy of the world. Lord Vishnu says, I have been tired giving attention to the world. Always busy I am. So I realize the God according the Sandhikal, according the Sandhikal, from the experience of middle point. I realize the experience of God. This is said by Lord Vishnu. We get this version or the supreme spiritual books. Now it describes the Hindi and Nepali language about this. परमात्मा को अभिवादन, परमात्मा को अनुभव करने के लिए आज का साहित्य बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जो है अकॉर्डिंग हिंदुइज्म पंचमी आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी नव दुर्गा, टाइम ऑफ दशहरा, विजयादशमी, टाइम ऑफ विजयादशमी। ये जो है परमात्मा का अनुभव करने के लिए संधि काल, इसको संध्या काल भी कहा जाता है। संध्या काल मीन्स इसका मतलब शाम का समय, न अधेर आया है न सूर्य का उपस्थिति है, न दिन है न रात है, वो बीच का समय संधि काल। संधि काल में जो अनुभव होता है वो वास्तव में परमात्मा का अनुभव है, क्योंकि वहाँ संध्या काल में, शाम के समय जब संध्या काल कहा जाता है, जब हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ न दिन का समय है न रात का समय, क्योंकि वो तो बीच का समय। ये बीच का समय बहुत अच्छा समय है परमात्मा का अनुभव करने के लिए। बीच का समय मतलब दो देश का बीच में बॉर्डर होता है, न उस देश का होता है न ये देश का होता है, वो खाली जगह रहता है। वैसा ही हम लोग सांस प्रश्वास करते हैं, लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, लेकिन बीच बीच में खाली रहता है, उसको संधि काल कहा जाता है। उसमें जो अनुभव होता है वो परमात्मा का अनुभव है, सच है। ये सर्वोच्च वेदांत दर्शन का कहना है। भगवान विष्णु भी
संधि काल को लेकर परमात्मा को साक्षात अनुभव करते रहते हैं, ये उच्च सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ में उसमें से पाया जाता है। अर्थात विष्णु भगवान बहुत बहुत व्यस्त है, क्योंकि संसार को देखभाल करते रहना पड़ता है हरदम, इसलिए बहुत व्यस्त है। तो भी भगवान विष्णु कहते हैं हम संधि काल को लेकर परमात्मा का अनुभव करते हैं। यह सूत्र परमात्मा में बदलने के लिए, क्योंकि केवल परमात्मा है, 100% परमात्मा है, इसलिए हम सभी का, संसार का, हम लोग सभी का, चाहे बच्चा, युवा वृद्ध सभी का असल में हरदम का स्वरूप केवल परमात्मा है। जहाँ मरण है, जहाँ जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं है, जहाँ बीमार वृद्धता का कष्ट नहीं है, जहाँ कोई चिंता दुख डर का अनुभव नहीं है, जहाँ केवल दुख रहित केवल सुख का अनुभव है, वो अनुभव है परमात्मा का अनुभव, जो 100% है। इसलिए उसको जानने के लिए संधि काल बहुत ही अच्छा रास्ता है, जिससे हम लोग संसार का, हम सब लोग अच्छी तरह से परमात्मा का अनुभव हरदम कर पाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। इसके अपवाद, इसके विरुद्ध में कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि ये इसमें कोई शंका नहीं है। इसमें कोई शंका का बात नहीं है, पूरा विश्वास का बात है। विश्वास करें, श्रद्धा करें, ले ले, अपने को परमात्मा में बदले। समय यही है, अच्छा समय है। ये जो है संधि काल के द्वारा वर्णन परमात्मा के करने के लिए अभी जो कह रहे हैं बलराम जी ने अद्वैत प्रदीप सरस्वती टाइटल्स, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड शिव केंद्र का अध्यक्ष फ्रॉम नेपाल देश से, भैरवा सिटी से, और रेडियो रूपंदेही एफएम, रेडियो परासी, श्रीनगर एफएम, पाल्पा तानसेन मुक्ति एफएम, इससे प्रसार प्रत्यक्ष अभी हो रहा है। इस सुवर्ण अवसर को पकड़ ले, क्योंकि संधि काल के माध्यम से परमात्मा में संसार का हम सभी को बदलने का, सभी को समान अवसर है। इसको उपयोग करें। यही बात हम नेपाली भाषा में करेंगे, क्योंकि अभी जो है नेपाली भाषा परमात्मा को समझने के लिए और अच्छा भाषा प्रमाणित हो रहा है। इसलिए परमात्मा का अनुभव करने के लिए पशुपतिनाथ का भाषा वर्तमान में, नेपाल का भाषा, नेपाली भाषा बहुत सर्वोत्तम है। इस भाषा में भी हम अभी वर्णन करेंगे परमात्मालाई अभिवादन। सन्धि कालको अनुभवबाट हामीले परमात्माको साक्षात अनुभव संसारका हामी सबैले सधैँ गरिरहन सक्छौँ। भगवान विष्णु पनि ज्यादै व्यस्त हुनुहुन्छ, किनकि संसारको देखभाल र सुरक्षा आदिको कार्यमा तापनि भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ व्यस्तताको बाधी, व्यस्तताको साथसाथै पनि मैले सन्धिकालको माध्यमबाट भगवानको, परमात्माको साक्षात अनुभव गरिरहेको हुन्छु। यो सूत्र हो, परमात्मामा बदल्ने सूत्र हो सबैको लागि, संसारका हामी सबैको लागि। सन्धिकाल भनेको बीचको अवस्था, त्यसमा दुई कुराको बीच, दुई देशको बीच, सास प्रश्वास गर्दा बीचको अवस्था, त्यो सन्धिकाल। जस्तो सन्ध्याकाल साँझको बेला, न दिन र रात, बीचमा न रात हुन्छ न दिन हुन्छ, त्यहाँ जो अनुभव हो, जो परमात्माको अनुभव हो, त्यसकारणले सबैभन्दा राम्रो ध्यान त्यति बेला पनि हुन सक्छ। त्यसको सूत्रलाई समातेर, त्यो सूत्रलाई समातेर, त्यो उपायलाई समातेर, त्यो तरिकालाई समातेर संसारका हामी सबै, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, सबै हामी सबैले परमात्मामा हामी बदलिन सक्छौँ। र समय पनि
ज्यादा सान्दर्भिक छ, किनकि विजयादशमी नेपाली अनुसार तिथिमिति अनुसार विक्रम सम्वत अनुसार 2081 साल आश्विन महीनाको 22 गते आज मङ्गलबार, मङ्गल शुभबार यो प्रसारित भइरहेको छ भगवानको बारेमा, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो। सन्ध्याकाल अर्थात् सन्धिकालको माध्यमबाट यो सन्धिकाल जो बीचको अवस्था हो, यसमा त्यो कुरा गयो अर्को कुरा आएको छैन, त्यो बीचमा यसलाई भन्छ सन्धिकाल। यसमा शुद्ध आफू छ, त्यो शुद्ध आफू हो परमात्मा। यस्तो शुद्ध आफू जो परमात्मा हो, जो शुद्ध अनुभव हो, जो शुद्ध प्रकाश हो, जो आनन्दै आनन्द हो, जहाँ कुनै केही छैन, जहाँ कुनै केही छैन, जहाँ शरीर संसार मरण सृष्टि प्रलय केही छैन, जो केवल परमात्माको अनुभव हो, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यस्तो यथार्थ स्वरूपलाई सन्धिकालको माध्यमबाट हामी सबैले यस्तो विजयादशमीको अवसरमा आज पञ्चम तिथि नवदुर्गाको अवधिमा शुभ साहित्यमा हामीहरूले यसरी सन्धिकाल, यो जो नचिताएको अवस्था जो सन्धिकाल हो, त्यो कुरा पनि छैन, त्यो कुरा पनि छैन, बिचमा केही कुरा छैन, तर आफ्नो निर्मल शुद्ध परिपूर्ण परमात्माको अनुभव छ। त्यही अनुभवलाई सधैँ सधैँ लिइरहनु हो। मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, जीवन मुक्त, देह मुक्त, परिपूर्णता परमात्मादेखि अभिन्न रूपले, सच्चिदानन्द रूपले, आनन्द घन जाजल्यमान रूपले सदा सर्वदा रहिरहने। अहिले समयको कारण अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।